Very good afternoon to all of you. Yes, I'm here. I'm Dr. Ruchi Shirudkar, Director Pediatreat. Today, the drug that I'm going to discuss today, I've already done on YouTube, but by my mistake, I have deleted it. So a lot of people requested that they want to hear it again because they were not able to be live. So yeah, today I'm doing sulphur again, and I hope you like it and you are able to use it more oftenly in your clinic. Sulphur is, a very, very big polychrist. It is said that it is very, very oftenly used, most used and most misused drug. A lot of people give sulphur, frivolously for every skin diseases. So you should not do that. You should understand the core of the remedy, or you should understand why the patient is suffering and if the patient needs actually sulphur. Right. So what I'm normally doing is I'm trying to give you things which you can see in your practice. क्या होता है, when we study a remedy, we study a drug picture and we build a picture, कि भाई वो ऐसा करेगा, and then we get fixed to those images. I would really request you not to get yourself fixed. Sulphur is full of polarity. You can see one thing, you can see duty, too much sense of duty, or duty, no sense of duty, or very, very particular about their appearance and indifference to their personal appearance. So please don't make a fixed image of any remedy. A remedy travels from one state to another. So please don't make these fixed images, right? So I'll explain the most common things that we see in a sulphur child that I have seen, I have read from various books. So a sulphur child is normally, I will just share an experience. My father is a homeopath, and when we were very, very young, we were small, say 3-4 years, and when we used to not, bathe and not wash our hands before eating food, my father used to always call us, don't behave like a sulphur, So it always stayed with me, that sulphur is basically a dirty remedy. But again, a caution, it is not always so. So जब बहुत छोटा टॉडलर अगर आपके क्लिनिक पे है और मदर कहे कि ये पॉटी करके पड़ा रहता है, अगर हमें डाइपर चेंज करना हो तो पैर मारेगा, हाथ पैर हिलाएगा, ही विल नॉट लेट अस चेंज द डाइपर. या फिर नाक बह रही है बच्चों की और वो नाक मुंह तक जा रही है और वो उसी को चाट रहे हैं, आई हैव सीन people from a very, very sophisticated family, and they do that, children. So वो नाक बह रही है और उसको चाट रहे हैं, और या बहुत छोटा टॉडलर है, उसमें आप सल्फर कैसे पकड़ेंगे? तो वो पेरेंट्स बोलेंगे कि वो पॉटी करके पड़ा रहता है, हाथ पैर मार रहा है, उसी में खेल रहा है. इफ द डाइपर इज नॉट देयर एंड पॉटी हैज कम आउट ऑफ दैट नैपी, तो उसी में खेल रहा है, पैर मार रहा है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो दिस इज वन इंडिकेशन फॉर सल्फर. तो जब कोई पेशेंट आता है तो वो पूरी ड्रग पिक्चर लेके नहीं आता, तो आपको वो 5 मिनट या 10 मिनट ऑफ क्लिनिक में यू हैव टू पिक दी स्मॉल थिंग्स. जैसे आर्सेनिक के बच्चे में हमने देखा कि थोड़ी भी नाक बहती है तो एक बच्ची आई थी जिसको मैंने आर्सेनिक दिया था, उसकी थोड़ी सी इतना 1 ड्रॉप ऑफ नोज आता था और वो मम्मी को ऐसे देखती थी कि पहुंचो, तो मम्मी तुरंत पहुंचती थी. इतना फस्टिडियसनेस उसमें था और इतना कैरेट डिजायर टू बी फर्स्ट कि जल्दी पहुंचो. या बाइटिंग टबलर की वो मम्मी को टॉर्चर कर रही है पहुंचने के लिए. ठीक है, तो पहली बात. दूसरी, इनडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस. वो कैसा दिख रहा है, वो क्या पहना है. छोटे बच्चे रैग्ड पुराने पजामे, नाइट सूट फटे हुए पहन के क्लिनिक आ जाते हैं. एंड कई बार पेरेंट्स बोलते हैं, मैंने इसको बोला कि आप चेंज कर लो नाइट सूट, व्हाई आर यू वेयरिंग दिस, वी आर गोइंग टू अ डॉक्टर्स. नहीं मामा, मुझे आई वांट टू वेयर, दिस इज वेरी कंफर्टेबल, आई वांट टू वेयर. तो पुराने घिसे हुए फटे हुए कपड़े उनको पहनना अच्छा लगता है, बिकॉज दैट अपीयरेंस डजंट मैटर टू देम, राइट. एक मेरे पास एक्ने की टीनेजर गर्ल थी, हर फेस वाज ऑल फिल्ड विद एक्ने, बहुत बड़े बड़े एक्ने थे उसको. और मैंने जब उससे पूछा कि हाउ डज इट बॉदर यू, तो शी सेड कि इट डजंट रियली, आई एम नॉट द पर्सन हु वुड बी वरिड अबाउट कि कैसी दिख रही हूँ, तो आई एम ओके, राइट. तो इनडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस. अभी अगर
हमें जो लेना होता है ना वो PQRS रहता है। बहुत सारे स्किन के पेशेंट्स, ऑब्वियसली अगर बहुत स्किन का आपको सपोज यहाँ पूरा सोरियासिस है या हर्पीज है, तो 99% ऑफ द पीपल बोलेंगे कि यार एम्बैरेस लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो जब मैं टोटलिटी बनाऊंगी तो उसको बहुत हायर इन माय इवैल्यूएशन नहीं लूंगी, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है ना कि अगर आपको स्किन फेस पे बहुत सारी चीजें हैं तो आपको थोड़ा खराब लगेगा, राइट। पर अगर आपको इतना है और आपको नहीं लग रहा है खराब, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अ महाराष्ट्रन ब्राह्मण वुड लाइक स्वीट्स, तो व्हाट इज सो कैरेक्टरिस्टिक अबाउट इट, यू नो। तो आपको वही चीज़ें लेनी होती हैं जो PQRS होती हैं। बहुत सारे लोग स्किन के पेशेंट्स में जहाँ बहुत स्किन है और बोले मुझे ऑड लग रहा है और उस ऑड को रूब्रिक बनाने की गाड़ी में लग जाते हैं। तो देयर यू शुड नॉट डू दैट, यू नो। आपको PQRS पकड़ना है, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पकड़ना है, right. So coming back, though ailments from embarrassment is a very very important feature of sulphur. तो हम सल्फर बच्चों की बात कर रहे थे, तो सल्फर बच्चे डर्टी होते हैं, नाक बहरी होती है, उसी को खा रहे होते हैं, डाइपर में अगर पॉटी है तो उसी में खेलते रहते हैं, indifferent appearance to his personal. Second very important thing of sulphur is they collect things, you know. ऐसे 4-5 हमारे पास रूब्रिक्स हैं दैट आई विल रीड इट आउट टू यू, विच एंड ऑल ऑफ देम हैव सिंगल सल्फर, ओके। लव्स टू कलेक्ट ओल्ड, टैटर्ड एंड यूजलेस थिंग्स, ठीक है। एडमायरेशन थिंग्स दैट आर नॉट एडमायरेबल एट ऑल, मतलब उन चीज़ों को एडमायर कर रहे हैं जो बिल्कुल एडमायरेबल के लिए लायक भी नहीं है। डिल्यूजन ब्यूटिफुल वंडरफुल रैग्स आर, मतलब जो रैग है, रग्ड है, जो खराब है। इम्बिसिलिटी ओल्ड रैग्स आर एज फाइन एज सिल्क। तो वो बच्चे, अब आप इसको क्लिनिक में कैसे पकड़ेंगे, वो बच्चे, मेरी डॉटर करती है कई बार, यू नो, नीचे से कोई पत्थर ले आएगी, अजीब अजीब से पत्थर होते हैं, और वो ले आती है और गूगल लेंस पे उसको देख रही होती है कि यू नो कि ये एस्टेरॉइड है क्या, कि मीटियोर है, या कौन सा टाइप का पत्थर है, कैसे बना है। तो आई टेल हर व्हाई यू गेट ऑल दीज थिंग्स, मतलब नीचे से क्यों लेकर आती हो। तो उसको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होता है, कलेक्ट कर रही होती है, यू नो। तो ऐसे पत्थर, हम छोटे थे तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो टॉफ़ी के रैपर्स कलेक्ट करती थी और पूरी डायरी बनाई हुई थी उसने टॉफ़ी के रैपर। यूजलेस थिंग्स, यूजलेस मतलब जो कभी यूज में नहीं आने वाली, राइट, यूजलेस। रैग्ड, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, कचरा, वो लोग वो कलेक्ट करते हैं। तो पेरेंट्स आके बोलेंगे ये ना बॉटलों के ढक्कन कलेक्ट कर रहा है। या आपने देखा होगा ना, जो लोग बचपन में स्टैम्प्स कलेक्ट करते, स्टैम्प्स कलेक्ट थिंग्स में भी सल्फर है, तो दे आर ऑल्सो कैन बी सल्फर। या टॉफ़ी के रैपर कलेक्ट कर रहे हैं, या पेपर की कटिंग्स कलेक्ट करते हैं, उनका कोई काम नहीं आने वाली वो। Are you understanding? This is very very important. If you see this, अगर आप देखें कि कोई पेरेंट्स बोल रहा है, मेरी एक रिलेटिव्स का बच्चा है, वो या फिर बच्चे क्लिनिक पे जो आते हैं, वो छोटा सा पेपर मैं कई बार उनको कलरिंग के लिए दे देती हूँ और वो भी लेके जा रहे होते हैं, तो मम्मी बोलती छोड़ दो इसको, नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है, मैं लेके जाऊँगा। एंड देन मम्मा टेल्स कि ये ऐसी फालतू फालतू चीज़ें घर में लेके इसने कबाड़ खाना बना दिया घर को, इतना कबाड़ी है ये, कुछ फेंकना नहीं चाहता। दे डोंट वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ थिंग्स, राइट। पुरानी चीज़ें कबाड़ा कलेक्ट करता रहता है ये। आप एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर पोजेशंस, यू नो। मेरे पास इतने टाइप की टॉफ़ी के रैपर्स हैं, या मेरे पास इतने टाइप के ढक्कन हैं। अरे यार क्या कलेक्ट कर रहे हो, यू नो, उनकी कोई वैल्यू है क्या। तो दिस इज सल्फर। ये हम टिपिकली बच्चों के बारे में, इवन अडल्ट्स, यू नो, फॉर दैट मैटर, पर ये बच्चों में बहुत कॉमनली देखा जाएगा और आपको इट विल रियली हेल्प यू इन योर प्रैक्टिस। एक और बात है कि सल्फर बच्चे, यू नो, कोई खाना खा रहा होता है तो पेरेंट्स बोलते हैं ये इसको ऐसे देख रहा होता है, यू नो। घर में कोई भी खाना खा रहा होता है, ये उनको ऐसे देख रहा होता है बड़े ध्यान से कि क्या खा रहे हैं। तो ये सिंगल सल्फर है। वॉचफुलनेस, एवरीवन ईटिंग ऑफ, मतलब जो खाना खा रहे हैं उनको बड़े ध्यान से देख रहा है। हमने फॉस्फोरस जब डिस्कस किया था तो भी वॉचफुलनेस, एवरी एक्शन ऑफ द फिजिशियन डिस्कस किया था, राइट।
तो वॉचफुलनेस एवरीवन ईटिंग, जो खाना खा रहे हैं ना उनको देखता है, राइट। सल्फर बच्चा बहुत दोनों में है, सेल्फलेसनेस एंड सेल्फिशनेस। आई हैव सीन सेल्फिशनेस मोर प्रोमिनेंट इन सल्फर। बहुत सेल्फिश होता है, बहुत पोजेसिव होता है अपनी चीज़ों को लेके। जो अपना है वो तो अपना है ही, क्योंकि पोजेसिवनेस है, पर जो दूसरा है के पास है वो भी मुझे चाहिए, यू नो। तो पेरेंट्स बोलेंगे अपनी साइकिल तो अपना रख देगा साइड में और दूसरे की साइकिल पे इसको बैठना है, अपनी बॉल तो देनी नहीं है दूसरे को, और दूसरा जो टॉय लेकर आया है वो भी इसको चाहिए, यू नो। तो दैट काइंड ऑफ वेरी अटैच्ड टू मटेरियलिस्टिक पोजेशंस. The money sense is there in sulfur, very characteristic money sense. तो अगर मम्मी बोलेंगे इसको बड़ी समझ है, यू नो, पैसों की। अगर हम कहीं घूमने जा रहे होंगे तो बोलेगा मम्मी यहाँ से क्यों ले रहे हो, डी मार्ट से ले लेते हैं ना, वहाँ पे आपको सस्ता मिल जाएगा। या आपने चॉकलेट स्प्रेड यहाँ से, जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं 10 साल 12 साल, यू नो, वहाँ पे डिस्काउंट में मिलता है ना, हम यहाँ से खरीदते हैं। तो दैट मनी सेंस, यू नो, मटीरियलिज्म, ये कैथरीन कुल्टर ने बताया है कि बहुत ज़्यादा होता है सल्फर बच्चों में, राइट। फिर एक रूब्रिक है फ्राइटेंड इजिली पेन फ्रॉम, मतलब कोई भी दर्द होता है उनको तो वो डर जाते हैं, जल्दी डर जाते हैं। सल्फर हैज़ बीन यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन में यूज़ किया जाता है, जिन बच्चों को स्टूल पास करने में डर लगता है। क्यों डर लगता है? कि दर्द होगा, और फिर क्या करते हैं वो लोग, स्टूल पास करने को मना करते हैं, जाना ही नहीं चाहते। फियर पासिंग स्टूल ऑन अकाउंट ऑफ पेन, कि पेन होगा इसलिए वो स्टूल पास करने नहीं जाना चाहते। ऑब्स्टिनेट स्टूल ड्यूरिंग, ये सब सिंगल सल्फर है। तो वो बहुत ज़िद्दी हो जाएंगे, दे डोंट वांट टू गो टू वॉशरूम, दे रिफ्यूजेस टू गो, एंड बोलेंगे मामा कि 4-4 6-6 दिन पास ही नहीं करना चाहता मोशन, क्योंकि उसके मन में ये डर बैठ गया है कि दर्द होगा, right? So fear passing stool on account of pain, right? सल्फर बच्चों का रूम वुड बी इन अ मेस, दे आर, यू नो, सामान इधर पड़ा है उधर पड़ा है, बट दे आर इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, रीडिंग डिजायर फॉर, बहुत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जो बच्चे इंसाइक्लोपीडिया पढ़ते हैं, मिस्ट्री की स्टोरीज पढ़ते हैं, फिक्शन पढ़ते हैं, उनके पास बहुत सारा कलेक्शन ऑफ बुक्स रहेगा, यू नो, दे लाइक टू रीड, नॉलेज चाहिए उनको, दे वुड रादर रीड देन गो आउट टू प्ले। I feel my daughter is sulphur. She's always with books. I told you कि she collects ऐसे stones and, you know, want to read about them. उसको अगर बुक दे दी तो वो आधी रात तक भी पढ़ सकती है. So, you know, very messy, doesn't want to clean her things, very intelligent. Hahnemann को हम sulphur बोलते हैं, you know, philosophy, ability for the kind of knowledge that he had. ragged philosopher बोला जाता है सल्फर को. ओके, तो ये बेसिक आइडिया हुआ कि बच्चे, अब आप इसको कहानी की तरह मत याद रखिए, आप सिर्फ इसको एक पॉइंटर्स बना लीजिए, क्यों नो, क्योंकि आपको ऐसा आइडियल सल्फर नहीं मिलने वाला है क्लिनिक में, राइट। सल्फर कैन बी वेरी प्रॉपर ऑल्सो, यू नो, लग्जूरियस क्लोथिंग, डिजायर फॉर फाइनरी, दे कैन वेयर द बेस्ट ऑफ क्लोथ्स ऑल्सो. सो डोंट मेक अ इमेज, आप रूब्रिक्स को समझिए, रूब्रिक्स को समझ के आप उसको पिक करना समझिए क्लिनिक में, राइट। वो 5 मिनट में या 10 मिनट में आपको पूरा ड्रग पिक्चर नहीं मिलने वाला है। और ऐसा भी मत करिए कि अरे ये तो बहुत वेल ड्रेस था, सल्फर तो हमने सीखा है कि गंदा होता है, या ये तो बहुत क्लीन है। फस्टिडियस में भी सल्फर है, क्लीनलीनेस में भी है, वॉशिंग डिजायर में भी है। तो इमेजेस में अटकिए मत, यू नो, कि सल्फर ऐसा नहीं होगा, किसी भी ड्रग की इमेज में मत अटकिए। आई वुड से रूब्रिक्स को समझिए, उसको पिक करना समझिए, क्लिनिक में कैसे पिक करेंगे, और फिर टोटालिटी बनाइए। अगर वो टोटालिटी कोई ऐसी ड्रग पे आ रही है जो आपकी इमेज से नहीं मैच करता, तो भी आप उस रेमेडी को दीजिए, बिकॉज 1440 सिम्टम्स हैं माइंड के और 1230 सल्फर कवर करता है। मतलब ऑलमोस्ट आप समझिए, मतलब एवरीथिंग इट्स कवर्ड बाय सल्फर मोस्टली, है ना। तो बहुत सारे रूब्रिक्स सल्फर कवर करता है, राइट। तो यस, आपको थोड़ा समझ में आया सल्फर के बारे में। आपके जो भी क्वेश्चंस है, यू कैन स्टार्ट पुटिंग अप,
and so that we can take it in the end, I would give you a little bit of gist of adult also, and some important pointers to pick up in your practice, right? तो हाँ, तो हम ये बच्चों में भी देखा जाता है कि अगर सल्फर बच्चा आए और आप पूछो क्या प्रॉब्लम है, नहीं नहीं मुझे सब अच्छा है, तो बस थोड़ी सी सर्दी है, बाकी सब अच्छा है, मेरे को कोई खांसी नहीं है. तो डिल्यूजन, वेल्थ ऑफ डिल्यूजन, abundance of everything he has. Yeah, तो boasting toys about his, I think is sulphur. I just check, मेरे ख्याल से सिर्फ सल्फर है उसमें, कि यू नो मेरे पास तो ये वाली गाड़ी है, मेरे पास तो रिमोट कंट्रोल कार है, मेरे पास यू नो जो बच्चे आके ऐसे बोलते हैं, यस इट्स ओनली सल्फर. तो जो बच्चे आके ऐसे बोलते हैं ना कि यू नो मेरे पास तो ये वाला लीगो का टॉय है, आपके आगे आके बोल रहे हो, वो मोस्टली सल्फर रहते हैं. तो वहाँ आपको डर्टीनेस या ये पॉटी करके सोता है क्या, या वो देखने की ज़रूरत ही नहीं है. आप एक ही रेमेडी को अलग अलग तरीके से क्लिनिक में पकड़ सकते हैं, राइट? तो अबाउट हिज ओन पोजेशंस दे बोस्ट, मैंने शायद ये लास्ट टाइम भी शेयर किया था कि किसी और सर का एक केस था कि उनका एक पेशेंट आया, ही वॉज वेरी प्रॉपरली ड्रेस्ड, और उसने आके अपनी मर्सिडीज बेंज की कार की चाबी एकदम आगे रखी, एंड द केस वॉज डन, एंड ही गेव सल्फर टू दैट पेशेंट. कि वो आगे रखने की क्या ज़रूरत है, आप दिखावा क्यों कर रहे हो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो केस 2 मिनट का हो सकता है, 10 मिनट का हो सकता है, या 50 मिनट का हो सकता है. मैंने अपने लास्ट वेबिनार में सल्फर के ऑलमोस्ट 4-5 केसेस एंड पूरा सल्फर जर्नी आपको बताया था. जिन लोगों ने भी वो 4 दिन का वेबिनार, कोविड के 2 केसेस बताए थे, जो पहले वेल्थ में थे और फिर एंजाइटी, चिल्ड्रन, फैमिली का कंसर्न एंड फियर पॉवर्टी में चले गए थे ड्यूरिंग कोविड, एंड रिमार्केबल रिजल्ट था उनको. वी हैव शोन दैट वीडियो केसेस. तो हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ कि आपको एक कहानी नहीं बनानी है, आपको सिर्फ पॉइंटर्स समझने हैं कि आप उनको क्लिनिक में कैसे पकड़ें, उनको क्लिनिक में कैसे समझें, राइट? अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ एक लेडी का. शी वाज फ्रॉम, आई प्रैक्टिस इन पुणे, तो वो कोरेगांव पार्क से थी, एंड उनका फ़ोन आया, किसी ने रेफ़र किया था कि उनको हेयर फॉल के लिए दवाई चाहिए. तो मैंने बोला ठीक है. अब उनका कॉल आया तो वो मुझे बोली कि मैंने बोला कुछ स्ट्रेस, उनको कोविड की टाइम से ही हेयर फॉल होने लगा था. तो बोली नहीं नहीं कोई स्ट्रेस नहीं है, सब है, हमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा बंगला है हमारा, बाहर बहुत बड़ा गार्डन है, सब नौकर चाकर घर के ही हैं, मतलब इन हाउस सर्वेंट्स हैं, तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि काम लोड पड़ रहा हो, गार्डन में आराम से बैठते. अभी केस हेयर फॉल का, पेशेंट बता क्या रहा है, अपनी वेल्थ कि हम पे नौकर हैं, गाड़ियाँ हैं. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. तो जो लोग अपनी वेल्थ को बताएं, दर्शाएं, दिखाएं कि मेरे पास तो इतना है, यू नो अबंडेंस में है, बहुत है, भरा हुआ है घड़ा, वो आप ये रूब्रिक लगा सकते हैं, एंड दे कैन बी सल्फर. मैंने उस लेडी को सल्फर दिया एंड शी रिस्पॉन्डेड ब्यूटिफुली इन द केस ऑफ हेयर फॉल, राइट? हेयर फॉल के केसेस में बहुत बार सल्फर आता है, पता है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं मेरे पास तो इतने बड़े बाल थे, ऐसे 2-2 चोटियाँ होती थी और इतने घने, यू नो दे शो यू फोटोग्राफ्स, और अब तो गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं, थिन ही इज़ गेटिंग, और फिर एंग्जाइटी आने लगती है, और यू नो तो सल्फर बहुत बार मैंने हेयर फॉल के केसेस में भी यूज़ किया है, ठीक है? तो अब सल्फर कैसे होता है कि वो अबंडेंस में होता है, वेल्थ में होता है कि बहुत है. तो जब पहले थोड़ी बहुत कमी आने लगती है उनकी हेल्थ में, तो वो फ्रिवलस में रहते हैं, केयर नहीं करते कि यार बहुत है अपने पास, तो 10 लाख रुपए हैं, 1-2 हज़ार खर्च भी हो गए तो क्या बात है, राइट? ये हेल्थ में भी हो सकता है, वेल्थ में भी हो सकता है, अपनी नॉलेज में भी हो सकता है, यू नो, राइट? तो अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो और गिरने लगता है, राइट? तो जब ज़्यादा गिरने लगता है तो वो केयरफुल हो जाते हैं, कॉशियस हो जाते हैं, ध्यान रखने लगते हैं, कॉशन में रहते हैं, और उनको तब यू नो फियर ऑफ पॉवर्टी आने लगता है कि यार बहुत गिर गया तो, वांट में आ गए तो, यू नो, तो फियर वांट ही विल कम टू, या फियर पॉवर्टी ऑफ, या डिल्यूजन थिन ही इज गेटिंग कि भैया हेल्थ तो गिरती ही जा रही है, ये स्किन तो बढ़ता ही जा रहा है,
तब सल्फर फ्रिवुलस से परसिवरेंस में आ जाता है कि आपके पास वो बोलेगा डॉक्टर साहब मैं दवाई लूंगा, 1 साल बोलोगे 1 साल लूंगा, पूरे रेवरेंस के साथ, होप के साथ आपके साथ जुड़ा रहता है सल्फर, है ना, वो कंटिन्यू करेगा दवाई। एंड फियर पॉवर्टी में रहता है कि यार ये और ना कम हो जाए, ये और ना। तो ये चीजें आपको क्लिनिक में, थिन ही इज गेटिंग आपको क्लिनिक में पकड़ना पड़ेगा। थिन ही इज गेटिंग, गेटिंग इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मतलब चल रहा है। डॉक्टर साहब मैं पहले 4-4 किलोमीटर दौड़ लेता था, अब तो मेरे को 2 किलोमीटर में भी हाफने लग गया हूँ। ये तो हेल्थ गिरती ही जा रही है, वजन कम होता ही जा रहा है, स्टैमिना कम होता ही जा रहा है। तो जब पेशेंट्स ऐसे वर्जन बोले तो हम थिन ही इज गेटिंग में लगते, डर लगता है डॉक्टर साहब यार ये खत्म ही ना हो जाए, पूरी गंजी ना हो जाऊं, तो सच वर्जन्स आपको क्लिनिक में पकड़ने हैं, राइट। तो ये है, एम्बैरेसमेंट बहुत आता है उनको इस गिरावट के साथ, राइट। सल्फर इज अ वेरी ईगोइस्टिक रेमेडी। उसको लगता है ये बीमारी मुझे कैसे हो सकती है, मैं तो वेल्थ में था, अबंडेंस में था, मैं कैसे बीमार पड़ सकता हूँ, राइट। और जब वो सच में पुअर हो जाता है या उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, या रिवर्सल ऑफ पैसा पूरा कहीं लॉस हो जाता है, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून हो जाता है, तो बहुत दुखी होता है। तो सैडनेस ड्वेल्स ऑन हिज कंडीशन, सैडनेस फॉर्च्यून रिवर्स ऑफ फ्रॉम, या फिर मिसफॉर्च्यून फ्रॉम, कि भैया जो किस्मत बदल गई, जो समय बदल गया, उसको लेके बहुत दुखी होता है। और उसको एक सिंगल रूब्रिक्स है कि बूढ़े लोग कई बार करते हैं, या जिनकी किस्मत पलट गई है वो लोग कई बार करते हैं। तो एक रूब्रिक है, ड्वेल्स मेलोडीज फ्रॉम द पास्ट कमिंग इन हिज माइंड। मेलोडी क्या होती है? मेलोडी है कोई मीठा गाना, इट्स, पुराने गाने बड़े मेलोडियस होते थे, आजकल के क्या ये हनी सिंह के गाने हैं, पीता जीता, तो मेलोडी इज समथिंग विच इज प्लीजिंग टू योर ईयर, जिसको सुनने में मजा आए। तो सल्फर को क्या कहता है कि ड्वेल, मेरे पास एक पेशेंट था, वो बोलता था कि यार जब वो भी क्या दिन थे, हमारे फ्रेंड्स रहते थे, हम बहुत मज़े करते थे, मेरा ऐसा रुतबा था, मेरे को इतनी सैलरी मिलती थी, एक वो भी टाइम था कि मुझे 1.5 लाख मिलता था, और उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। ये केस मैंने प्रेजेंट किया था, और ही वॉज वेरी सैड अबाउट इट, अब उतना डिस्पेयर सोशल पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ रेपिटेशन। तो मैं इतना कमाता था, तो ड्वेल्स, वो उस पर ड्वेल करते हैं कि जो पुरानी अच्छे वक्त था, मेलोडीज, जो पुराने समय की जो मेलोडीज हैं उस पे वो लोग ड्वेल करते हैं, राइट। तो सल्फर के ना ऐसे बहुत सारे, इनन्यूमरेबल, इट कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आप क्लिनिक में पकड़ सकते हैं। उस केस में मैंने इसी पे सल्फर दिया था उनको, क्योंकि वो पूरे टाइम यही सोच रहे थे कि मैं 1.5 लाख कमाता था, मेरे पास सब था, अपनी मर्जी से खर्च कर सकता था। तो यस, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो यू कैन पुट इट। So the idea was to take sulphur was because it was deleted and a lot of people had not seen it, and I wanted to repeat it क्योंकि there are so many things of sulphur which is yet not be told. जैसे charming others, आप सल्फर की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे, उनकी नॉलेज को लेके, उनकी पर्सनालिटी को लेके, you get charmed। आप क्या यार, क्या नॉलेज है इस बच्चे में। सल्फर को फ्लैटरी की भी डिजायर होती है, मतलब एक रूब्रिक है बच्चों में जो हम यूज करते हैं, माँ बोलते हैं ना, कुछ भी करेगा ना तो पूछेगा मैं अच्छा हूं ना। डिजायर कब बोलेंगे, मतलब पेशेंट, बच्चा कुछ ऐसा करे कि आप उसकी तारीफ करें, पूछेगा ये ड्राइंग मैंने कैसी करी है। जिसको डिजायर ऑफ फ्लैटरी नहीं है या वो नहीं, उसको पूछने की जरूरत ही नहीं है ना, वो अपना करेगा, अपना रख देगा, राइट। तो मैंने कैसे बोला मम्मा, टीचर आई सेड नाइस ना, टीचर हाउ इज माय वर्क। बच्चे ऐसे करते हैं ना क्लास में, आपने नोटिस किया, वो कुछ बहुत बच्चे करते हैं, सिलिका टाइप बच्चा होगा तो काम करेगा और रख देगा, क्योंकि टिमिडिटी है, वो जाके क्लास में टीचर 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 करने वाले बच्चे नॉर्मली सिलिका नहीं होते, एंटिसिपेशन है, एंग्जाइटी है।
पर जिस बच्चे को फ्लैटरी रिकग्निशन चाहिए वो बच्चे सबसे आगे आगे आगे, टीचर मे आई रब द बोर्ड, सो टीचर हाउ इज माई वर्क, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो ये सब चीज़ों से आप पिकअप कर सकते हैं। आपको कोई बहुत बड़ी पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है सल्फर की, आपको सिर्फ ये पॉइंटर्स याद रखने हैं या इनको पकड़ना आना चाहिए। आप याद भी ना रखें, आपको इनको पकड़ना आना चाहिए कि आप कैसे। तो फ्लैटर्ड डिजायर टू बी गिव्स एवरीथिंग व्हेन फ्लैटर्ड, मतलब आप इससे कुछ भी ले लो, इसकी 4 तारीफ कर दो और ये आपको सारे खिलौने दे देगा। समझ में आया? गिव्स एवरीथिंग व्हेन यू बी फ्लैटर्ड। अल्कोहलिज्म के केसेस में सल्फर दी जाती है। अल्कोहलिज्म आइडलनेस फ्रॉम, कोविड में काम चला गया, खाली बैठे पी रहे, कोई काम नहीं है, रोज 2 पैक लगा रहे, तो क्यों पीने लग गए? कोई काम नहीं था डॉक्टर साहब तो पीने लग गए, खाली बैठे हैं तो पी लेते। तो अल्कोहलिज्म आइडलनेस फ्रॉम, यू नो, जैसे मैंने बोला कि उनको पोजेशंस है, कलेक्ट करते हैं, तो ऐसा भी है। और वो बहुत पोजेसिव होते हैं या बहुत प्राउड होते हैं अपने पोजेशंस के बारे में। पर एक रूब्रिक ऐसा भी है कि इनडिफरेंस पोजेशंस टू हिज पर्सनल, तो इनडिफरेंस में भी जा सकते हैं, राइट। एक रूब्रिक है सल्फर में जिसमें आई थिंक इट्स सिंगुलर, डिल्यूजन स्मॉल थिंग्स अपीयर स्मॉल समटाइम एंड लार्ज समटाइम्स। मतलब उनकी बीमारी, उनको कभी तो जब वेल्थ में रहेंगे या अबंडेंस में रहेंगे तो उनको लगेगा क्या ये तो छोटी सी बीमारी है, और जब उनको फियर पॉवर्टी या थिन में आ जाएंगे तो उनको वही बीमारी बहुत बड़ी लगने लगती है कि यार मतलब बहुत बड़ी है बीमारी, बहुत प्रॉब्लम है, यू नो। तो सेम ही चीज छोटी लगेगी और सेम ही चीज बड़ी लगेगी। समझ रहे हैं आप लोग को? आर यू ऑल विद मी? या टच इम्पेल टू टच एवरीथिंग unless touch it doesn't seem real। तो उधर आपको डर्टीनेस या मटीरियलिस्टिक, मेरा कहने का एक ही तात्पर्य है कि आप कहानी ना बनाएं किसी भी रेमेडी की। पेशेंट जो बोल रहा है उसको पकड़ना सीखिए, रूब्रिक्स को समझना सीखिए, और जैसे आप रूब्रिक बनाएं उनको इवैल्यूएट करिए कि मेरे पेशेंट में ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये वेल्थ तो नहीं छोड़ूंगी, या इंडिफरेंस पर्सनल अपीयरेंस। फिर वो अगर स्किन का पेशेंट है और एम्बैरेसमेंट बोल रहा है तो वो एम्बैरेसमेंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी उस केस में, राइट। या पेशेंट बोले कि यार ये स्किन यहाँ पे है, अब चेहरे पे आ रहा है तो मेरे को टेंशन हो रही है, तो ऑब्वियसली चेहरे पे आएगा तो उसको टेंशन होने वाली है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो उधर उतनी वैल्यू मैं उस चीज को नहीं दूंगी। Are you understanding? Evaluation is very very important, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उसका इवैल्यूएशन करिए। मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें, इंडिपेंडेंट होता है, जब सल्फर बीमार पड़ता है तो उसको, जैसे वो कोविड का केस मैंने डिस्कस किया, तो उसको बहुत चिंता अपनी फैमिली, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, केयर्स फुल ऑफ अदर्स अबाउट में जाता है कि यार मैं प्रोवाइडर हूँ, इन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरी वजह से। एक और रूब्रिक जो मैंने सल्फर का बहुत कॉमनली यूज़ किया है वो है एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस। ये माओ में बहुत ज़्यादा 2 थप्पड़ मार देती हैं बच्चों को और 10 मिनट बाद उनको बड़ा दुख हो रहा होता है, यार मैंने क्यों मार दिया, यू नो। हस्बैंड से लड़ लेती हूँ, फिर लगता है यार मैंने क्यों कर दिया। तो यू नो, एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक, जल्दी उनको रिपेंट होने लगता है। यू नो, मेरे को गुस्सा आता है, मैं मार देती हूँ, 2 चांटे मारती हूँ बच्चे को, फिर बहुत दुख होता है, मैं बहुत, मुझे मतलब रिपेंट होता है कि मैंने क्यों मारा, यू नो, पश्चाताप होता है। इवन बड़ों में कि गुस्सा आता है, सामान फेंक देता हूँ और फिर लगता है यार नहीं करना चाहिए था, है ना। तो ये भी सल्फर में है। फिर हमने फॉस्फोरस में पढ़ा था, क्यूरियस ट्रेनिंग ऑफ द फिजिशियन वांट्स टू नो, इसमें भी सल्फर है। तो रूब्रिक तो बहुत है समझने के लिए, देयर इज टू मच टू स्टडी इन सल्फर। कुछ लोग होते हैं क्लिनिक में आके पॉलिटिक्स की बातें कर रहे होते हैं, यू नो। मेरे एक पेशेंट था और उसकी कोई ऐसे केस लेते लेते बात आई और मैंने वाइफ से बोले पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट है, यू नो, पॉलिटिक्स ऑक्यूपाइड इन टू, मतलब ही वॉज अगेंस्ट नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी एंड वॉट एवर। इनसे इनको कोई बोल दे, मतलब बड़ा ही इंटरेस्ट है इनको उन सब बात में, किसी को कोई नहीं होता है, तो राइट। तो आप वो पॉलिटिक्स ऑक्यूपाइड इन टू भी सल्फर में है, राइट। आर्ट एबिलिटी फॉर चैरिटेबल, एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉम्पेंस विद, मतलब 4 चीज भाई को दी ना तो उससे भी एक्सपेक्टेशन होता है कि भैया कल मेरे यहाँ जरूरत पड़े तो काम एक्स्ट्रा कर दे, यू नो। तो
Yeah, so there is too much in sulfur. The idea of presenting sulfur is, or any other remedy जो मैं आपके साथ कर रही हूँ, वो इतना ही है कि आप चीज़ों को पकड़ना समझें, उनकी टोटालिटी बनाएं, उनको इवैल्यूएट करें और एक सही दवाई आप अपनी प्रैक्टिस में दे पाएं, राइट? मैं देखती हूँ कुछ रह नहीं गया हो जो मैंने इम्पोर्टेंट अपने क्लिनिक में देखा है और आपको बताना भूल गई हूँ। तब तक आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, आपको जो नहीं समझ में आया इतनी देर तक। और मेरे को 2 अनाउंसमेंट भी करने हैं। हाँ, तो एनवी और जेलसी होती है। सल्फर नॉलेज गेन करना चाहता है, और छोटे बच्चे रिलीजियस अफेक्शन होता है, गॉड के बारे में क्वेश्चंस करेंगे। रिलीजियस अफेक्शन इन चिल्ड्रन टू ऑक्यूपाइड विद रिलीजन, दे वांट टू गेन नॉलेज अबाउट इट, हैव फुल नॉलेज अबाउट इट। तो व्हाट इज गॉड, क्या होता है, ऐसे बोलते हैं, राइट? फिलोसफी एबिलिटी फॉर, है ना, समाज सेवा करना चाहते हैं ये लोग। ओके, तो मैंने देखा बहुत पॉजेसिव भी हो सकते हैं या जेनरस भी हो सकते हैं। हाँ, तो फाइनली, हाँ, फाइनल स्टेज तो मैंने आपको बताई नहीं। तो फाइनल स्टेज में ना, जब ये एक्चुअली पॉवर्टी में चले जाते हैं तो डिस्पेयर में जाते हैं, है ना, और फियर कॉलिंग नेम्स या डिल्यूजन वेवरिंग ग्राउंड, मतलब जिस नींव पे वो खड़े थे, जैसा उनको लगता था कि हार्ड वर्क नॉलेज से वो पैसा कमा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, पैसा बहुत कमाना है, उनकी वो नींव ही हिल जाती है। तो ये ना, वो बोलते हैं यार, जो मेरी फिलॉसफी थी लाइफ की, वही हिल गई है, मतलब वही डगमगाती हुई दिख गई। मैंने पूरी ज़िंदगी मेहनत करी, मुझे लगा नॉलेज हार्डवर्क से पैसा कमा सकते हैं, अभी लगता है कि यार पूरी फिलॉसफी बिगड़ गई। या फियर नेम्स, कॉलिंग ऑफ या कॉलिंग नेम्स, तो हम नाम से किसको पुकारते हैं? सर्वेंट होते हैं या जो रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं उनको हम नाम से नहीं बुलाते, मिस्टर नरेंद्र मोदी या मिस्टर कोई सीईओ है कंपनी का या कोई है, तो उनको हम नाम से, ए रामू इधर आ, हम उन्हीं को तो बुलाते हैं। तो इनको सोशल पोजीशन का, सोशल सोसाइटी में जो रेपुटेशन है उसका बहुत ख्याल रहता है। तो उनको वो एंड स्टेज में उनको ये डर रहता है कि यार लोग, अब मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही, लोग मुझे नाम से पुकारेंगे। तो इंसान ऐसे नहीं बोलेगा कि मुझे नाम से पुकारेंगे, राइट? कि अब कोई इज्जत नहीं रही सोसाइटी में, रेपुटेशन लॉस हो गई, ऐसा इंसान बोलेगा। तब उनको अवर्जन टू एजुकेशन, जो इंसान जिंदगी भर एजुकेशन था, या अवर्जन टू लिटरेरी पर्सन या लिटरेरी वर्क में भी जा सकते हैं, राइट? तो सल्फर चाइल्ड इज वेरी इंटेलिजेंट, शार्प रहेगा। आपको मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ एनवियस और जेलस, बोस्टिंग अबाउट हिज टॉयज एंड हिज पोजेशन, कलेक्ट करेगा थिंग, वॉचफुलनेस, ईटिंग ऑफ, मटीरियलिस्टिक, कॉन्स्टिपेशन में यूज कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। तो यस, तो पहली बात, एक अनाउंसमेंट जो मैं आज मैं करना चाहती हूँ कि आई एम कमिंग अप विद अ 10 वीक्स प्रोग्राम, मतलब जहाँ 10 हफ्ते में एक बार, एवरी ट्यूसडे 2:30 to 5 we'll be taking sessions. We'll be showing you cases of one remedy, say 2-3 cases of one remedy, so you understand कि how to pick that remedy in your cases. अभी एक रेमेडी सल्फर ही 50 तरीके से हमारे क्लिनिक पे आ सकती है, तो हम 2-3 केसेस, 4 केसेस आपको दिखाएंगे, जितना भी उस स्टिपुलेटेड टाइम में दिखा सकते हैं। और फिर वो एक ग्रुप है व्हाट्सएप का जिसमें आप एडेड होगे। हम कोशिश करेंगे उस पूरे हफ्ते हम अलग अलग तरीके से उस रेमेडी के रूब्रिक समझें और आप कैसे उसको क्लिनिक में पिकअप कर सकते हैं वो डिस्कस करें, ताकि अगर सपोज 800 रूब्रिक हैं तो हम एटलीस्ट 100, 200, 400 रूब्रिक्स तो ऐसे डिस्कस करें। कुछ रूब्रिक होते हैं जो हम नहीं देखते क्लिनिक में, राइट? उनको बहुत समझ के, या उनके बहुत ही हाइपोथेटिकल मीनिंग है, वो आप नहीं पकड़ पाओगे क्लिनिक में, या नहीं पकड़ते हैं। पर 100, 200, 400 रूब्रिक ऐसे होते हैं जो हम रोज देख रहे होते हैं, राइट? तो हम उस रेमेडी के वो उस पूरे हफ्ते में वो रूब्रिक्स डिस्कस करें, ताकि आप उस रेमेडी को एटलीस्ट उन 10 रेमेडी, आपको ऑनेस्टली बोलूं, एक बेसिक 40-50 रेमेडीज हैं, 40-50 भी नहीं, 20-25 रेमेडीज हैं। अगर आप उतनी भी समझ गए ना, तो आपकी 90% ऑफ द प्रैक्टिस इज सेट, राइट? तो आप एटलीस्ट
उन रेमेडीज को अपने क्लिनिक में ना मिस कर पाए, राइट। कई बार इतनी छोटी सी चीज होती है, पेशेंट 2 मिनट में आके बोलता है एंड इट्स डन एंड द केस इज डन। आपको उसकी मम्मी से वो शेयर करता है कि नहीं करता, वो इम्पोर्टेंट ही नहीं रह जाता, राइट। पर वो जो 2 मिनट में बोला, वो पकड़ना बहुत ज़रूरी है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो यही टिप्स आपको उन सेमिनार में दी जाएगी। बहुत कॉमन रेमेडीज डिस्कस की जाएंगी और यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो वर्जन हमें कितनी बार कितने लोग बोले और हम पकड़ ही नहीं पाए, बिकॉज योर माइंड सीज ओनली, योर आई सीज ओनली वॉट योर माइंड नोज। तो आप वही देख पाते हैं जिसकी नॉलेज है। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मेरे पास एक परसों पेशेंट आई और एलोपैथी ले रही थी, शी इज़ अ लेबरर एंड वो विटामिन B12 के इंजेक्शन बहुत टाइम से ले रही थी क्योंकि उसको बर्निंग ऑफ सोल्स थी, राइट। अब B12 नॉर्मल आ गया पर बर्निंग ऑफ सोल्स जा नहीं रही। तो एक एलोपैथिक फिजिशियन ने मुझे रेफर किया था वो केस एंड शी सेड कि यार इसका जा ही नहीं रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या होता है, तो वो बोली कि यार जलता है। कब जलता है? पैर तलुए जलते हैं और रात को जलन होती है, यू नो। और केस खत्म, इतना ही था केस। तो रूब्रिक क्या लिया गया ये आप बताएं मुझे। अभी 70 लोग हैं अभी इस लाइफ पे और उसका यही वर्जन था और डॉक्टर बोला हर बार यही बोलती है कि जल रहा है, तलवे जलते हैं, रात को बहुत जलता है। मुझे आप लोग के ना कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। 74-75 लोग हैं पर मुझे सिर्फ ये दिख रहा है कि ही इज वॉचिंग। आर यू ऑल कमेंटिंग? मुझे नहीं दिख रहे हैं कि आप लोग बता नहीं पा रहे हैं। चलो, मुझे आंसर नहीं आ रहा है तो मैं ही बता देती हूँ। आई डोंट नो वाई आई एम नॉट एबल टू सी द कमेंट्स। एक बार ऐसा भी पहले भी हुआ है। तो रूब्रिक था डिल्यूजन फायर विजन्स ऑफ नाइट, मतलब आग दिखना रात को, माइंड का रूब्रिक है। लैक्टिसिस 33 डोजेस मैंने उसको दी एंड 3 ही दिन बाद उसका मुझे फ़ोन आया कि मेरा तो वो रात को मेहंदी लगा रही है पैर पे ताकि ठंडा हो या कुछ कर रही थी, ऐसे ऐसे करती थी और उसका 70% बर्निंग चला गया। वहाँ मैंने लैक्टिसिस का चार्मिंग, मैग्नेटाइज या कुछ भी नहीं था। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कहना? कहानी मत बनाइए। मतलब मेरा इतना ही कहना है कि जो भी वो पेशेंट 5 मिनट में बोला, वो तो 2 मिनट का केस था और मैंने उसको लैक्टिसिस दी एंड द पेशेंट इज क्योर्ड। या वो डॉक्टर ने जो टॉयज के बारे में बच्चे ने आके बोला या चाबी गाड़ी के आगे रखी, केस खत्म। तो डिल्यूजन फायर विजन्स ऑफ नाइट, ये रूब्रिक लिया था और लैक्टिसिस दी थी। तो हम जो ये वेबिनार लेंगे उसमें ऐसा ही आपको बताएंगे। देखो फेसबुक लाइव पे मैं पेशेंट्स नहीं दिखा सकती, राइट। तो आपको ऐसे केसेस दिखाए जाएंगे कि आप एक ही रेमेडी को अलग अलग तरीके से कैसे पकड़ें अपने क्लिनिक में, राइट। And this time I'm going to share the video for a week. Suppose Monday, every Tuesday we are taking that seminar. तो Tuesday seminar लिया तो अगले Monday तक आपके पास वो recording रहेगी और उसके बाद वो लॉक हो जाती है रिकॉर्डिंग. So then you cannot see. So you have 1 week of time to make notes and to see the video again. But मेरे को आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप लोग वो रिकॉर्डिंग आगे शेयर नहीं करेंगे या उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे. वो एक लर्निंग के लिए. हम लोग सब डॉक्टर हैं, सब लोगों में इतना साइंस या इतना होना चाहिए कि वी आर डूइंग ऑल दिस टू स्टडी. वी आर नॉट डूइंग दिस टू डू सम, कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है इसके आगे, राइट. सो इन दिस सेम वे वी हैव टू पिक सल्फर इन आवर क्लिनिक, जैसे हमने बताया, या कोई भी रेमेडी. So those who want to register for this seminar can register in coming another 2 days probably, and probably after that we'll close the registration. We already have 110 people who have registered for this seminar, and mostly the people who have attended our seminars and have been benefited by our seminars. Okay, पहली बात. दूसरी बात, होम्योपैथी कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है. अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब कर सकते हैं, राइट. सिर्फ हार्डवर्क रिक्वायर्ड है. डोंट लुक फॉर रेडीमेड सोल्यूशंस. जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कई बार लोग केसेस डालते हैं. इन माई 18 years of practice,
ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने 2 केस भी किसी और से नहीं पूछे होंगे कि यार ये रेमेडी है, बताओ क्या दे, राइट? मैं एक वर्जन पूछ सकती हूँ, या मैं पहले खुद 100 बार 100 जगह पढ़ूंगी. देयर इज नॉट इवन अ डे व्हेन आई डोंट स्टडी. मैं बहुत जगह उस वर्जन को ढूंढ, और फिर मैं किसी से ओपिनियन ले सकती हूँ कि यार इसको क्या ले सकते हैं, यू नो. तो फिर लोग 10 बताएंगे तो मैं उसके 10 के क्रॉस रेफरेंस और पढ़ूंगी, राइट? तो रेडीमेड सोल्यूशन आप ग्रुप पे डाल के ये केस है मैं बता दूंगी, बट दैट विल नॉट हेल्प यू, बिकॉज वो एक वर्जन है. अगर आप ढूंढोगे तो आपको 10 उसके क्लोज्ड वर्जन्स और 10 और दवाइयों के वर्जन समझ में आएंगे. सो योर हार्ड वर्क विल पे. आप कितने भी सेमिनार अटेंड कर लीजिए, वो सिर्फ एक मोटिवेशन देते हैं और एक एंट्री देते हैं, पर आपका हार्ड वर्क ही आपको अपनी प्रैक्टिस में आगे लेके जाएगा, राइट? सो मैं एक और बात आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ, बट आई रियली वांट टू शेयर दिस कि स्पेशली फीमेल्स, यू नो, बहुत सारी ऐसे मुझे मैसेज करा कि यू बिकम माई आइडल, मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ, आई एम सो प्राउड कि आप इतना प्रैक्टिस कर पा रही हैं एंड इतने अच्छे से दवाई समझती हैं. मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोलूँ, एक टाइम ऐसा भी था जब मैं भी 2,000 रुपये महीना कमाती थी, एंड पीपल अराउंड मी स्टार्ट सेइंग कि तुम मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कर लो, या यू नो डू वो जो डेटा एंट्री के काम होते हैं. एंड ऑनेस्टली आई डिड इट फॉर सम टाइम टू अर्न मनी, टू हैव माई लाइवलीहुड. But I always knew my worth. There was not even a day that I realized that I am not capable of earning lakhs of rupees a month. And there is a lot of hard work. तो जितनी भी फीमेल्स ये सोचती हैं कि यू नो होम्योपैथी करना हम तो कुछ नहीं कमा पाएंगे, आप बहुत कुछ कमा पाओगे. आप एक बार रिजल्ट देना शुरू करो. इट इज़ जस्ट परसिवरेंस एंड अ डिज़ायर टू लर्न जो आपको चाहिए. आप पढ़ने की इच्छा रखो, नॉलेज गेन करने की इच्छा रखो, फेलियर केसेस में फिर मेहनत करने की इच्छा रखो. आप मनी इज़ नॉट द लिमिट. यू कैन अर्न एज मच एज यू कैन ड्रीम ऑफ. तो मैं सिर्फ ये बात बोलना चाहूँगी कि किसी को देख के एडमायर करना अच्छी बात है. वी ऑल्सो एडमायर्ड पीपल. पर होम्योपैथी में सैडली मैंने बहुत ज़्यादा मेन ही देखे, प्रफुल्ल विजयकर, राजन संकरन, या कोई भी मयूरेश महाजन या सहगल. यू विल हार्डली सी फीमेल्स. वाई? यू नो, आप कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर, सहगल के सारी टीम देख लीजिए, मोहंती सर देख लीजिए, नरेंद्र गुप्ता सर, सब सर ही हैं. तो मुझे कई बार लगता है कि फीमेल्स क्यों रह जाती हैं पीछे. एंड व्हेन आई सी माय ट्रैवल या माय यू नो वो, तो आई ऑलवेज फील कि यू नो प्रॉब्ली वी फील कि यू नो कमाना लेट शुरू कर पाते हैं, सेटल लेट हो पाते हैं, इसलिए हम इतना जल्दी गिव इन कर देते हैं. या फिर I don't know, मतलब I'm really getting emotional talking about this, but I really want, no offense to boys, but I really want the females to work hard and be successful homeopaths. Why? Because we females have the natural tendency, ability to understand emotions very well. हम बेसिकली इमोशनल होते हैं, तो हम लोगों के इमोशनल एम्पथी में जल्दी जाते हैं, तो हम जल्दी समझ पाएंगे लोगों के इमोशन. एंड यू बिलीव मी, यू ऑल कैन प्रैक्टिस वेरी वेरी वेल. आप एक अच्छी प्रैक्टिस, एक अच्छी कमाई कर पाएंगे. सॉरी मैं सल्फर में ये मोटिवेशन बोल रही हूँ, बट आई रियली वॉन्ट इट. मतलब दिस इज़ माई ड्रीम. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वर्ल्ड जहाँ बच्चे को पेन हो और हम आइबुजेसिक ना पिलाएं, और फीवर आए और एंटीबायोटिक ना दें. मतलब आई एम अ डॉटर ऑफ अ होम्योपैथ, और मैंने फर्स्ट क्रोसिन की गोली अपनी प्रेगनेंसी में खाई. तो मेरे को पूरी जिंदगी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बीमार नहीं पड़ी, राइट? मैंने देखा है होम्योपैथिक डॉक्टर खुद अपने बच्चों को एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं. दिस इज सो सैड. आई अंडरस्टैंड यू आर एज अ मदर, बट आप ट्राई तो करिए. आप फेल होंगे तो दीजिए, आप कोशिश तो करिए. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यू नो. तो मैं जब यू नो आई डोंट नो व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल दिस ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, बट व्हेन आई वाज स्टडिंग, तो मेरा एक वो था, जावेद अख्तर का एक कोट था, विच आई ऑलवेज यूज टू से इट इन माई माइंड 100 times. एंड मैं आपको वो बताती हूँ एक छोटा सा. एंड दिस इज जस्ट, आई विल एंड दिस लेक्चर विद दिस, कि शायद आप लोग इस बात से कुछ मोटिवेट हो पाएँ और पढ़ें और अच्छी प्रैक्टिस करें और अच्छे होम्योपैथ बने. जिंदगी एक राह नहीं, दो राह है.
पहला रास्ता बहुत सजल है, बहुत सरल है। मतलब जिंदगी जो है वो एक राह नहीं है, दो राहें हैं। पहला रास्ता जो है वो बहुत सरल है, आसान है। आप एलोपैथिक प्रैक्टिस में जाना, जीपी करने लगना, नो ऑफेंस, आई अंडरस्टैंड दैट यू मस्ट बी हैविंग प्रॉब्लम्स टू कि कमाना है घर में, व्हेन यू बोथ आर हस्बैंड वाइफ दोनों होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, आई अंडरस्टैंड। सो ये जो भी कुछ है वो किसी को भी लुक डाउन करने के लिए नहीं है, पर ये मोटिवेट करने के लिए ज़रूर है कि हम एक अच्छी होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ज़िंदगी एक राह नहीं, दो राह है। पहला रास्ता बहुत सरल है, दूसरा रास्ता बहुत कठिन है। इस रास्ते पर धूप है, छाँव नहीं है। जहाँ तसल्ली भीख में दे दे, इस रास्ते पर ऐसा कोई गांव नहीं है। तो दूसरा रास्ता बहुत कठिन है, इस रास्ते पर धूप है, छाँव नहीं है। जहाँ तसल्ली भीख में दे दे, इस रास्ते पर ऐसा कोई गांव नहीं है। मुझे पता है कि ये रास्ता आसान नहीं है, पर मुझको ये गम भी है कि क्यों तुमको अब तक अपनी पहचान नहीं है। तो शायद आपको समझा होगा कि मुझे पता है कि ये रास्ता आसान नहीं है, पर मुझको ये गम भी है कि क्यों तुमको अब तक अपनी पहचान नहीं है। क्यों अभी तक आप ये नहीं पहचान पाए कि यू कैन डू इट, you can become the next Vijayakar, you can become the next Sankaran, you can become the next whatever. Everybody has that capability. It's just hard work and dedication and perseverance. I'm telling you, it is nothing else. कोई किसी के ऊपर सींग नहीं लगे, आप hard work करिए, you all can be that or probably better than them, right? Why to be someone else, right? So yes, thank you all. Thank you for having the patience and giving all the love that I've been getting. It is really humbling and touching, to see people being, attached. I'm not saying that I don't have failures. I'm not saying that I don't know all, कि मुझे सब आता है, मेरे पास बहुत सक्सेस है, पर मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि मेरे पास आपको ठीक करने की चाह है और हिम्मत है, और हर फेलियर पे मेहनत करने की हिम्मत है। वो नहीं भी ठीक हुआ तो मेरा बैड लक, बट वो डेडिकेशन आप सब में दिखना चाहिए। दैट इज़ ऑल दैट आई रियली वॉन्ट यू टू से। सो येस, नाउ वी डोंट हैव अ ग्रुप ऑन व्हाट्सएप, वी हैव अ ग्रुप ऑफ टेलीग्राम। जो भी ज्वाइन करे, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी सीख सकता है। दो ही चीज़ें, हम किसी भी पार्टी में नहीं हैं कि हम इस ग्रुप को हैं, इस ग्रुप को हैं। पहली बात, जो भी हमारे ग्रुप में आए वो ओपन माइंड से आए कि हमें सीखना है, राइट? हम वो किसी भी बुक से पढ़ के सीख सकते हैं, चाहे वो मोहंती सर की हो या शंकरन की हो या शॉल्टन की हो या कैथरीन कुल्टर की हो या केंट की हो। हमें कोई बंधन में नहीं बंधना कि भैया हम तो इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इसको नहीं करेंगे। मेरा हमारा एक ही इंटेंशन हो, सीखना। दूसरी बात, हमें किसी को लुक डाउन नहीं करना है कि यार तेरे को इतना भी नहीं आता, राइट? तो अगर आपके ये दो इंटेंशन हैं तो आप वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यू ऑल आर ओपन। सेमिनार या वेबिनार के लिए जिसको रजिस्टर करना हो वो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई गिव यू माय नंबर 7875626071। आप मेरे को कांटेक्ट करिए, पर नेक्स्ट 2 days बिकॉज वी आर ऑलरेडी ओवर फुल विद आवर वेबिनार्स। एंड ये वेबिनार में भी हमारी सिर्फ इतनी कोशिश है कि आप अपने क्लिनिक पे कॉमनिस्ट वर्जन पढ़ पाएँ और वो कॉमनिस्ट वर्जन की अच्छी प्रैक्टिस कर पाएँ। मैं ये नहीं कह रही कि कल आप प्रैक्टिस करें तो आप बोलिए मैंने पीडियाट्रिक से सीखा कि मेरा नाम लीजिए, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती। या मेरे ग्रुप के लोग किसी और ग्रुप में नहीं, आप हज़ारों ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं चाहूँगी आप हर ग्रुप ज्वाइन करके सीखें, बट रिस्पेक्टेबल रहिए, लोगों को लुक डाउन मत करिए। और जितने भी लोग यहाँ नंबर लिख रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करिए। मैंने अपना नंबर दिया है, मैं फिर रिपीट करती हूँ, 7875626071। मैंने सब ग्रुप से सीखा है, मैंने कभी भी अपने आप को लिमिट नहीं किया। मैंने जिससे भी ग्रुप से अटैच्ड हुई, जो भी मेरे टीचर्स हैं, आई हैव डन माई ICR फर्स्ट एंड आई स्टिल नाउ ये कहती हूँ कि मेरा जो बेस है वो ICR से बना। अभी मैंने बात को सहगल ज्वाइन किया या और 10 डॉक्टर्स से सीखा। मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि एनीथिंग वाज वेस्ट, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ टॉट मी सो मच मोर। साइकोडायनेमिक्स जो हम ICR में तब लगता था कि क्यों इतनी बड़ी लाइफ स्पेस टेबल बना रहे हैं, क्यों डिस्पोजिशन स्टडी कर रहे हैं, क्यों IPR देख रहे हैं, पर
it has helped me so much at बहुत सुपरफिशियल लेवल पे कई बार हम रूब्रिक्स लेते हैं, बट दैट बेस हैज हेल्प मी सो मच टू अंडरस्टैंड अ पर्सन एट अ मच मोर डीपर लेवल, एट द लेवल ऑफ कोर, राइट। तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करिए, मैंने अपना नंबर आपको दिया है। जितने भी लोगों को अटैच होना है या उस वेबिनार को अटेंड करना है, अगर आपको मनी नहीं है, आप अफोर्डिंग नहीं है, तो भी आप मुझे बताइए, बट वो सब जेन्युइन होना चाहिए, यू नो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम डिसीटफुल हैं या किसी को फ़ायदा लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एवरीबडी हैज़ पुट इन लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आई डोंट हैव अ टीम, या मेरे पास एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स है कि 50 डॉक्टर मेरे साथ काम कर रहे हैं और और आई एम मेकिंग अ बिजनेस आउट ऑफ इट। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। द इंटेंशन इज टू मेक to learn and to make homeopathy good, and we all do a good practice, so the intention is right, and I want you all to be successful in your life and do a good homeopathic practice. So thank you all, thank you. It was wonderful having so many 70-80 people on my live session for the next time, though I had taken this earlier, and it's been absolutely humbling and touching and overwhelming, I would say, to see all the love that is getting on my way. Thank you so much.